یہاں پر ہرگز کبھی شریک نہ ہو ورنہ آپ بھی اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اذان ہوتی ہے اور نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں اشہد ان لا الہ ہے لیکن اشہد ان لا الہ اذان میں بھی بولا جاتا ہے اور اتحیات میں بھی پڑھا جاتا ہے. کیا اس میں کوئی گنجائش ہے یا بالکل سخت منائی ہے کہ اسے اشہد ان لا الہ ہی پڑھا جائے؟ اشہد ان نہیں ہے، اشہد ان لا الہ ہے. اذان میں بھی اتحیات بھی سب ہے. اللہ الہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور ان لا الہ، جب نون ساکن لام جمع ہو جائیں تو نون لام سے بدل جاتا ہے، لام کا لام میں ادغام ہو جاتا ہے. ایک یہ عربی صرف کا قاعدہ ہے، اس کے تحت یہاں پر نون لام سے بدل گیا ہے. اشہد ان لا الہ نہیں پڑھا جائے گا، اشہد ان لا الہ پڑھا جائے گا. صحیح یہی ہے. شکریہ. ایک سوال یہ آیا ہے یہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ آج کل کے صوفیوں سے اللہ بچائے. اے میرے بھائی، صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں جو تصوف پر عمل کرتا ہو. اور تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں هو ترک ما سوى اللہ، اللہ کی سوا سب کو چھوڑ دینا، اس کو تصوف کرتے ہیں. اور جو اس پر عمل کرے اس کو صوفی کہتے ہیں. سمجھے میرے بھائی؟ تو آج تک تو لوگوں نے بیوقوفی کا نام صوفی سمجھ رکھا ہے. دیکھا یہ زیادہ بیوقوف ہے تو اس کو صوفی صاحب کہیں کرتے ہیں. ہماری اسلام کی بہرحال صوفی کو سیکھ کہتے ہیں. جو عالم ہو، رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہو اور طریقت روا کی مقامات پر فائز ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ جہل کا نام صوفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح الفاظ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ قبر میں میت کو دفن کرتے وقت لوگوں کو چہرہ وغیرہ دکھاتے ہیں. اگر کوئی مرد ہے اور کوئی ایسا کلمات ہے اور آخر وقت میں چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دکھا دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یا کوئی عورت ہے تو کسی غیر محرم کو اس کا چہرہ دکھانا نہ چاہیے. اگر محرم دیکھ لے گا تو گناہ نہیں ہے. اور بتائیے ایک سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ جیسے میرے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے نبی کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صاد بنا دیتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں، یا صاد لام عین میم صاد ہم لکھ دیتے ہیں. ایسا کرنا حرام ہے. فقہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو قلم کر دینا چاہیے. یہ اس کے بعد قلم ہے، کاغذ ہے، روشنائی ہے، اور نبی پر دودھ بھیجنے کے لیے قلم کی روشنائی بھی ختم ہو گئی ہے، کاغذ کی گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے. حالانکہ کتنا بڑا فائدہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر کسی شخص نے اپنے قلم سے نبی پر درود شریف لکھا تو جب تک وہ درود شریف لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو جب نبی کا نام پاک لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھنا چاہیے اور قلم سے یہی لکھنا چاہیے. یوں ہی بزرگان دین کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ کی جگہ جو را اور زال بنا دیتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کی جگہ را اور حا بنا دیتے ہیں، یہ بھی سخت منع ہے. رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہی پورا لکھنا چاہیے. خواب میں اگر کسی نے قرآن کا پڑھا گرتے ہوئے دیکھ لیا تو شراب کو کوئی نافذ نہیں ہے، لیکن اس کو توبہ کرنا چاہیے اور کفر کو صدقہ کرنا چاہیے.
کیا بولتے ہیں؟ سوال یہ آیا ہے، کوئی لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں اور برابر سلام کرتے ہیں، تو السلام علیکم جب ایک ایسے لکھ دیتے ہیں، ایسا سلام دے دیتے، ایسا کرنا کہتا ہے۔ اگر کسی نے ایک لکھ دیا شارٹ کٹ میں السلام علیکم ہے، تو سلام کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی، اور اس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوگا۔ وہ سلام جو سنت کے مطابق کیا جائے اسی سے سنت ادا ہوگی اور اسی سلام کا جواب واجب ہوگا، اور جو سلام سنت کے مطابق نہ کیا جائے اس سلام کا جواب واجب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم حضرت، سردی کا موسم ہے، جیسے کندھے سے لوگ سال وغیرہ اوڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی نماز میں تمیز نہیں ہوگی؟ اور دوسرا سوال ہے، تو امام جہاں نماز پڑھاتے ہیں جو اس محراب بولتے ہیں، اگر امام اس محراب کے اندر ہے پوری طرح اور جماعت باہر ہے تو کیا نماز میں کوئی کمی ہوگی؟ اور تیسرا سوال ہے، رف کیا ہے؟ بھائی 3 سوال ہو گئے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ سردی میں کچھ لوگ چادر نہیں ہوتے، کچھ لوگ چادر نہیں ہوئے، یہ مکروہ ہے، اس کو اصاعت کہتے ہیں۔ مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی کے درمیان ایک مرتبہ ہے اصاعت ممکن کا مکروہ بھرا ہوا ہے، مکروہ ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ اس طرح چادر حالت نماز میں نہیں اوڑھنا چاہیے۔ اگر سردی میں آپ کو چادر اوڑھنا ہے تو اس کا سنت اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ چادر کو یہ سر کے اوپر سے نہیں اوڑھنا چاہیے، حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ الی قوم لا یکون عمائمہم تحت ردائہم، اللہ اس قوم کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتا جس قوم کے امامے چادروں کے نیچے نہیں رہتے۔ تو امامہ چادر کے نیچے کب رہے گا؟ جب ہم چادر کو سر کے اوپر سے اوڑھیں گے۔ یا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے نماز میں سردی کے موسم میں جب آپ چادر کو اوڑھیں تو اپنے سر سے اوڑھیں، کھانوں سے نہ اوڑھیں۔ ایک جواب ہو گیا۔ اب دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ تھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے دونوں قدم مکمل طور پر محراب کے اندر ہیں، تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی خرابی لازم تو نہیں آئے گی؟ ہاں آئے گی۔ اس طرح محراب میں کھڑا ہونا تو مکمل دونوں قدم اندر ہو جائیں مکروہ ہے۔ حکم شرع یہ ہے کہ جب محراب میں کھڑا ہو تو اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے دونوں قدم محراب کے باہر ہو جائیں، بلکہ فتاوی کی کتابوں کے الفاظ یہ ہیں، انما العبرۃ بالقدم، اعتبار قدم کا ہے۔ اگر دونوں قدم باہر ہو گئے تو کراہت ختم ہو جائے گی، اور دونوں قدم اندر ہیں تو نماز مقروض ہوگی۔ دو کا جواب ہو گیا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ رف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کا نام ہے رف۔ وہی ہے رف، اور رف کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جب میرے سرکار سوار تھے تو اس کا ایک قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ ہماری نظر جہاں تک جا رہی ہے اس براق کی نظر جہاں تک پڑتی تھی اس کا ایک قدم بہت ہوتا، اس کا نام ہے رف۔ تینوں کا جواب ہو گیا۔ اب آگے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہم نے 180 کلومیٹر کا سفر کیا اور وہاں ہماری ظہر کی نماز حاجی سفر میں ادا ہو گئی۔ ہم گھر پر آنے کے بعد اس قضا نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب ہم گھر پر 2 پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اگر نماز حاجی سفر میں ادا ہوئی تھی تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور سفر میں جو نماز ادا ہو گئی ہے گھر آنے کے بعد بھی آپ 4 کی 2 ہی پڑھیں گے۔ اور یوں ہی جو نماز آپ کی گھر پر قضا ہو گئی ہو اور
शरई सफर जो कम से कम 92 किलोमीटर का हो रहा हो और सफर में घर पर कज़ा शुदा नमाज को पढ़ें तो फिर आप चाहें। और रसूलुल्लाह से पहले नमाज फर्ज थी या नहीं थी, ये बताइए, इससे आपको क्या लेगा? आप वही नमाज पढ़ना चाहते हैं, ये बताइए ना, अब तो आप समझिए। यानी जिस नबी की शरीयत के अहकाम का जानना हम पर लाजिम व वाजिब है, उसकी कौन हुक्म है? ये बताइए कि हज़रत मूसा किस तरह रुकू किया करते थे? अब बहुत कुछ नहीं रहे। मैंने इससे पहले भी कहा कि आप सवाल वो करें जिससे आपको फायदा पहुंचे और आपके कौम को फायदा पहुंचे। दीगर नबियों की शरीयत में क्या क्या था सुनिए आप उससे तो बिल्कुल परेशान, मैं बता दूंगा फिर भी, लेकिन एक बात आपसे कह देना, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाते और आपकी उम्र आ गई, तौरात में कुछ टुकड़े नहीं हुए थे। ये हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में, तौरात ये वो किताब है जो अल्लाह ने हज़रत मूसा पर नाज़िल फरमाई थी। तौरात के टुकड़े नहीं हुए थे, गोया सरकार से इजाजत चाह रहे थे, या तो ये भी अल्लाह का कलाम है, आपकी इजाजत हो तो ये भी पढ़ लिया करो। हदीस पाक में है गुस्से से रसूलुल्लाह का चेहरा सुर्ख हो गया और मेरे आका ने इशारा में आया मूसा सुनो, आए उमर सुनो, अगर मूसा इस जाहिरी जिंदगी में होते, जिंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती। क्या मतलब? आए मूसा, आए उमर, अब कुरान आ गया, तौरात की कोई जरूरत नहीं, हमारी शरीयत आ गई, अब किसी नबी की शरीयत की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? बस बात मेरी गुजारिश। बकिया अपने आदम ने कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी तस्बीह करते थे, आपको इससे तो कोई हुक्म है? हाँ, बात मैं फिर भी एक बता देता हूं। ये कुरान से साबित है कि दीगर नबियों पर भी नमाजें फर्ज थी और उनकी नमाजों में रुकू और सजदा भी था। ये कुरान से साबित है। कुरान ने फरमाया अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वल रुक्का सुजूद, हमारे घर को दोनों लोग पाक करें, तवाफ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। ये हुक्म दिया था अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल को। तो क्या पता चला उन नबियों पर भी नमाज थी और नमाज में रुकू और सजदा भी था। ये कुरान से साबित है। बस खुतबे के टाइम सुन्नतें अदा कर सकते हैं या नहीं? हाँ, हमारे अभी बच्चे ने सवाल किया है कि खुतबा में खुतबे के बाद खुतबा जब पढ़ा जा रहा हो सुन्नत पढ़ सकते या नहीं। तो ऐ मेरे प्यारे भाई, जब खुतबा शुरू हो जाए तो सुन्नत, नफल और तस्बीह, कुरान भी पढ़ने की जा सकती है। आप आए और खुतबा शुरू हो चुका था, आप बैठ जाइए और अपनी सुन्नत आप बाद में पढ़ लीजिए, ठीक है? खुतबे के दरमियान सुन्नत पढ़ने की जा सकती है, यहाँ तक के कदा भी पढ़ने की जा सकती है। हाँ, अगर कोई साहिब तरतीब है और साहिब तरतीब की फजर की नमाज कज़ा हो गई है तो उसको खुतबे के वक्त कज़ा नमाज फजर की पढ़ने की इजाजत है। वो साहिब तरतीब नहीं है तो उसे कज़ा पढ़ने की भी इजाजत है। हाथ नमाज में अगर कोई ख्यालात शैतानी जाने से आ जाए तो नमाज में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। और बताइए। और चादर शरीफ में जो डीजे निकाले जाते हैं उसमें लड़के नाचते हैं, ये सब करना जायज है या नहीं? और नाजायज, वो हराम, गुनाह। समझ गया? चादर शरीफ में शरीफ लोग ऐसा कभी नहीं करें, ऐसा नाचना कूदना यह हराम है, नाजायज गुनाह है। और बिला सवाल एक रहेगा, फायदा सबको पहुंचे। ये महफिल अल्लाह के नबी का दीन सीखने के लिए है।
ये किसी शख्स का अपनी बीवी के बारे में 3 मरतबा छोड़ा छोड़ा थोड़ा कहना, ये कैसा है? अच्छी बात नहीं है। लोग ये समझते हैं जब लफ्ज़ तलाक कहो तभी तलाक पड़ती है, ऐसा नहीं है। तलाक के अलावा भी ऐसे अल्फाज हैं जिनसे तलाक पड़ जाती है। किसी ने अपनी बीवी से कहा छोड़, मैंने तुझे छोड़ा, मैंने तुझे छोड़ा, मैंने तुझे छोड़ा, 3 बार कहने से 3 तलाक पड़ जाएंगी, बीवी हलाल हो जाए। और बड़ा हलाला दोबारा ने कहा कि कोई सुन। और हमारे होटल में सवाल किया है, अजान होते हुए सलाम करने का जवाब देना चाहिए नहीं? अगर अजान हो रही हो तो ना सलाम करना चाहिए, ना सलाम का जवाब देना चाहिए। कुरान की तिलावत कोई कर रहा है और किसी ने आकर सलाम किया तो सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। या कोई शख्स वजीफा पढ़ रहा है और किसी ने सलाम किया तो उस वक्त भी सलाम का जवाब वाजिब नहीं है। खाना खाते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए। सलाम कर लिया और जवाब दे दिया तो जवाब देना जायज है। नमाज पढ़ते में अगर मोबाइल पर जाए तो क्या करें? कोशिश आप ये करें कि पहले से आप पढ़ते रहें, लेकिन कभी बेख्याली में अगर रह गया तो आप 3 मरतबा कोशिश की बगैर, 3 मरतबा अमल के बगैर, 1 आध मरतबा में अगर को आप आफ कर देंगे तो नमाज बातिल नहीं होती। हुजूर एक मंजिल पे 3 लोग सफर में थे, तो तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर था जी। 80 किलोमीटर का सफर था, तो ड्राइवर ने अचानक रास्ता बदल दिया, तो वो रास्ता जो है 92 किलोमीटर हो गया। तो क्या उस पे 3 लोगों पे जो है कसरे हो जाएगी नमाज कि? अच्छा सवाल है। यहाँ से झांसी क्या किलोमीटर है? मऊ-रानीपुर 72 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रास्ता से जाएंगे 92 किलोमीटर हो जाएगा, तो जिस रास्ता से आप सफर करके जाएंगे उसी रास्ता का इस्तेमाल किया है ना। या अगर किसी रास्ता से 80 किलोमीटर था, आप गए उस रास्ता से जिस रास्ता से वो 95 किलोमीटर हो रहा है, या आप उसी रास्ता के किलोमीटर जोड़े जाएंगे और 92 किलोमीटर हो जाने पर आप मुसाफिर हो जाएंगे और आपकी सदा और अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत जैसे टीवी घर में रहती है वो तो हराम है, और आजकल एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, लोग आसानी से यूज कर रहे हैं, वो कैसा है? मोबाइल आता है ना, मोबाइल के नाम। देखो हमारे भाई ने सवाल सही किया है, ये हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम। मल्टीमीडिया मोबाइल और नेट कनेक्शन है ना, और गंदी फिल्में, गंदे गाने, ये हमारे नौजवानों का हाल हो चुका है। जिस तरह टीवी में नंगी तस्वीरें, फिल्में देखना हराम है, गाने सुनना हराम है, जो उसका है वही इसका भी है। जिस तरह फिल्में वहां देखना हराम है, आप अपने मोबाइल पर देखें वो भी हराम। ठीक, एक सवाल और है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते हैं तो लोग अब डिलीट भी कर देते हैं और मोबाइल में रहते हैं, स्टोरेज वगैरह भी जाते हैं, ये कैसा है? ये डिलीट कर देना तो जायज है। इस पर बाकायदा इससे पहले एक सेमिनार भी हो चुका है। सेमिनार में मैं भी शरीक था, मेरा मुकाला भी किया था। लिहाजा अगर किसी ने कुछ कलिमात जो आपके मोबाइल में नोट थे
किसी इंग्लिश कर दिए, बिठा दिए, ख़त्म कर दिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कुरान करीम की आयत वगैरह आपने महफूज कर रखी है तो बहरहाल उस मोबाइल को इस्तेमाल वगैरह ले जाने से बचाना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जैसे किसी माँ बहन की मैयत हो जाती है जी, वो उसमें औरतों का जो गुस्ल हो, उस औरत का गुस्ल हो जाएगा। गुस्ल हो जाने के बाद में उनके खुद घर की मुखिया बनी घर की औरतें कहने लगती हैं कि एक लोटा पानी इस पे और मैयत को नहला दिए जाए। जब पूरे घर के लिए कि एक लोटा पानी और डाल दो गुस्ल के बाद, ये कैसा मामला है? समझ गई आपकी बात। देखिए मेरा मोहतरम ऐसा है, अब तो मुकम्मल हो गया, अब पूरे खानदान में ये डोला नहीं तो वही की तकलीफ भी पूछे, पर अगर 4 से 10 बात तीसरी बात बता दिया आपने, है ना? तो वह ऐसा कोई शराब कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी की शरीयत में ऐसा हुक्म दिया हो ऐसा हर नहीं है। हाँ ये जरूर होता है कभी कभी जैसे बाप को दिया जा रहा है और गुस्ल आखिर होने को आ रहा है तो सारी बेटों को बुला ले ये गुस्ल की आखिरी मंजिल है, अपने बाप की खिदमत में थोड़ा थोड़ा आप भी शहीद हो जाइए और थोड़ा थोड़ा पानी इस गुस्ल में आप भी डाल लीजिए ताकि आखिरी खिदमत में आपको भी हिस्सा मिल जाए। ये चल जाता है। बहुत सब मुकम्मल हो गया और सारे खानदान की औरतें कि वो लोटा पानी बनाए, ऐसा अल्लाह की शरीयत में कोई हुक्म नहीं है। इससे अपनी माँ बापों को बचाइए और उनको हमेशा बताइए। हमारे भाई ने सवाल हमारे हाथ सामने किया, किसी ने लेकर भेजा है, ये शख्स ने गुस्ल किया और गुस्ल से फारिग होकर वो लेटा बैठा, उसका इंतकाल हो गया, तब फिर नहलाया जाएगा। तो बात ये है तो चाहे वो सब करके आया हो चाहे वो पहले से हो तो पाक रहे थे। ज्यादातर मोमिन पाक ही रहते, बहुत कम लोग मिलेंगे तो ना पाक है, कुछ लोग मिलते भी हैं, लेकिन बहरहाल हुक्म ये है चाहे वो पाक कितना भी हो, इंतकाल के बाद मरने के बाद उसको उसको देना ही फर्ज किफाया है, उसको बहरहाल किया जाएगा। सुनने दो फल रातों पर नहीं पड़ती है। अगर कोई ऐसा इमाम हो जो सुन्नते मुअक्कदा छोड़ने का आदी हो या अलानिया तौर पर नमाज की पाबंदी ही नहीं करता हो, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, तो ऐसे शख्स को इमाम बनाना चाहिए। वो हमेशा लगे और हमारे मोहतरम में सवाल किया गया मुझे चूमने के बारे में जरा बताइए, मुझे चूमना कहां से साबित है? हदीस पाक सुनिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन समिया इसमी व ववा इब्हामीन अल-ऐनैन। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं कानपुर गुज़िश्ता साल 13 रबीउल अव्वल को एक बहुत बड़े इजलास में बहुत बड़े नबी बोल रहा था, तो मैं इस हदीस पाक को पढ़ा तो वहां कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने बालग होने से लेकर उसको तक कभी उठा नहीं चूमा था। मैंने इस हदीस पाक को सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग उसी दिन से उठा चुके। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन समिया इसमी, जिसने मेरा नाम सुना, वह वदा इब्हामीन अल-ऐनैन, और अपने 2 अंगूठे अपनी आंखों से लगा लिए, अना तालिबुहु फी सुहुफिल क़ियामा, मैं उसे क़यामत की सफ़ों में तलाश करूंगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वक़ाइदुहु इल जन्नह, और मैं जन्नत की उसका रहनुमा और पेशवा बनूंगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए नबी के नाम पर अंगूठा चुमा करें और इन बरकतों को हासिल किया करें। और इस दौर में तो अंगूठे चूमना ही ईमान वालों की निशानी बन चुकी है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बस्ती में जब कोई औरत खत्म हो जाती है तो यहाँ औरतें गुस्ल कराती हैं, तो गुस्ल कराने के बाद कफन हो जाता है औरतों का, तो वो घर वालों को बुलाती हैं और कहती हैं अपने जैसे उनके बच्चे होते हैं
क्या लड़कियाँ होती हैं या शोर होती हैं, यदि कान में से माफी मांग लो, ये जा रही तो ये कहाँ तक दोस्त कान में मुर्दे के सामने माफी मांग लो? जब तक अम्मा जिंदा थी नहीं माफी मांगी। अपनी माँ से माफी मांगता, अपने बाप से माफी मांगता, तो बीवी के चक्कर में अपनी माँ से उलझता है ना। बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर किसी का है ना। तो मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे तो अपने माँ बाप की जिंदगी में राजी करने की कोशिश करो, उनके कदमों को चूमो, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखो। अल्लाह की नबी की हदीस से पाक साबित है कि माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी ज़ियारत करो। अब मरने के बाद काल में माफी मांगना ये खाली जहालत है, इससे माफी अभी कुछ नहीं होगी। तीजे और 40वें कई फातिहा में जो दावत दी जाती है वो दावत कबूल कर सकते हैं नहीं? दो सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि इंसान नापाक था, नाफज हो गया था, उसने पाक कपड़ा पहन लिया, तो कपड़ा नापाक हो जाएगा या पाक रहेगा? इसका जवाब ये है, अगर कोई नापाक शख्स पाक कपड़ा पहन ले, अगर उस पाक कपड़े में कोई निजासत नहीं लगी तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, पाक ही रहेगा। ये जवाब हो गया। अब इस अजीज बच्चे ने सवाल किया है कि 40वां और 20वां वगैरह में खाने की दावत करना चाहिए या नहीं। अगर मोहतरम इस सिलसिले में मसला शरई ये है कि आज के दौर में जो तरीका राइज है वो शरअन सही नहीं है कि लिस्टें तैयार करते हैं शादी ब्याह की तरह और फिर खाने की दावत बांटते हैं कि पूरे महीने में एक ही आदमी की दावत है। ये शरअन मना है। फरमाया गया एक नबत दावत लाफी शुरू, दावत इस्लाम में खुशी में मशहूर है, ना कि गमी में। लिहाजा खाने की दावत करना ये मना है। हाँ, अगर आपने वालिद को, अपने अहबाब को, अपने वालिद की फातिहा के नाम पर बुलाया, आइए फातिहा में शिरकत कीजिए, मेरे वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, और फिर आपने उन मेहमानों को खाना भी खिला दिया तो ये शरअन नाजायज़ गुनाह नहीं है। हाँ, खाने की दावतें बांटना ये मना किया गया। तो क्या हमारे मोहतरम ने सवाल किया कि अजान हो रही थी लेकिन आवाज कानों में नहीं आने पाई। जब चंद कलिमात मुअज्जिन कह चुका तब उसके बाद बत्ती आ गई और चालू हो गया, तो अल्फाज सुनने लगे। तो अब हम जवाब दें तो कहां से? जब से आप क्या कानों में आवाज पड़े वहीं से दोहराना वाजिब है, और जो आपने सुने ही नहीं है उसका जवाब भी वाजिब नहीं होगा। लेकिन बेहतर ये है आप वहां से सारे अल्फाज, सारे कलमों को अब दोहरा। ये सवाल बड़ा अच्छा है हमारे पास। सवाल ये किया गया है कि कोई लोग जब खुतबा सुनने के लिए बैठते हैं तो नमाज करके ऊपर नीयत बांधते हैं, और जब पहला खुतबा हो जाता है ये सलाम फेरते हैं। ये खालिद जहालत। भाई नियत करके हाथ उठाकर बांधने क्या माना है, और सलाम फेरने क्या माना है? हाँ, हाथ बांधकर अदब से बैठ जाना ये नाजायज नहीं, ये दोस्त है। लेकिन ये कि पहले खुतबे में हाथ कानों को उठा के बांधना और उसके बाद सलाम भी फेरना ये खालिद जहालत है, इसकी शरअ में कोई असर नहीं। हाथ से हाथ बांध कर बैठ जाना ये शरअन जायज़ और दुरुस्त है। हुजूर, इमाम साहब ने 4 रकात की शक्ल पढ़ाई और वो 5वीं पढ़ा गए तो क्या नमाज दोहराना पड़ेगी, या 6वीं पढ़ा गए तब क्या होगा? सलाम फेरा। अगर वो चौथी रकत में बैठ गए थे तो चौथी रकत में बैठना फर्ज है। चौथी रकत में वो अत्तहियात की मिक़दार बैठ गए और उसके बाद वो 2 रकत और पढ़ा गए
تو 2 नफ्ल और 4 फर्ज हो जाएंगे। और अगर उन पर चौथी रकम में आप बैठे ही नहीं तो फिर नमाज को दोहराना। 5वीं रकात शायद हो गई तब भी हो जाएगी। अगर सिर्फ 5 ही पढ़ी तो नमाज को दोहराना था। अगर 6 पढ़ ली, 6 पढ़ ली और चौथी में बैठ के आप फारिग हो गए, अत्तहियात की मिक़दार बैठ गई, तो ये 4 फर्ज और 2 नफ़ल हो जाएंगे। और ऐसा अगर आपने 5 पढ़ी फिर नमाज का आप याद है, नमाज को दोहराना। अब मसला ये है कि शौहर कहीं से मुरीद और बीवी कहीं से मुरीद हो सकती है, नहीं हो सकती? अरे मेरे भाई, जहां जिसका दिल भरे वहां से कोई हो जाए। पीर आलिम दीन हो, पीर के लिए 4 शर्तें हैं, हमसे समझिए आप। पीर के लिए 4 शर्तें हैं। आलिम हो, अगर पीर आलिम नहीं है तो उसे मुरीद होना जायज नहीं है। वो चाहे बहुत बड़ी खानका में सज्जादा नशीन हो, चाहे कोई हो। आलिम दीन हो, इसलिए पीर की जिम्मेदारी है अपने मुरीदों को हलाल व हराम बताना, शरीयत के मसाइल से आगाह करना। जब पीर खुद ही शरीयत नहीं जानता है, मुरीदों को क्या बताएगा? नंबर 1 क्या? पीर आलिम हो। दूसरी शर्त क्या है? सुन्नी सही अकीदा हो। तीसरी शर्त है शरीयत का पाबंद हो। चौथी शर्त है उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, इजाजत हासिल हो। ये 4 चीजें पाई जाएं तो मुरीद होना जायज है। 4 में से एक भी कम है, अगर आलिम नहीं है या पाबंद शरअ नहीं है तो हरगिज़ उसको पीर बनाना जायज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत की बारगाह में एक सवाल आज है, क्या फर्ज ऐन सीखने के लिए जाने की इस्लामी में कोई जाना चाहता है, अगर माँ बाप मना करते हैं तो क्या उनकी इजाज़त के बिना जा सकता है? जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह। बक़दर ज़रूरत इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मसलन नमाज नहीं जानता और नमाज सीखने भी किसी तरह जानना चाहता है। नमाज में कुरान पढ़ना फर्ज है, कुरान नहीं जानता और कुरान सीखने के लिए किसी मोमिन के पास जाना चाहता है। बाप मना कर रहा है तो नमाज सीखने नहीं जाओगे, तुम कुरान सीखने नहीं जाओगे, तो माने या ना माने। अब मैं इसका जवाब अल्लाह, इसके जवाब में रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला ताअता लिहादिन फी मासियतिल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। अगर पीर कहे कि खुदा की नाफरमानी करो तो पीर की नहीं मानी जाएगी। उस्ताद कहे तो उस्ताद की नहीं मानी जाएगी। बाप कहे तो बाप की नहीं मानी जाएगी। माँ कहे तो माँ की नहीं मानी जाएगी। माँ बाप बड़े काबिल एहतराम है, पीर बड़ा काबिल एहतराम है, उस्ताद बड़ा काबिल एहतराम है, लेकिन की वही बात मानी जाएगी जिसकी रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती हो। अगर नबी और खुदा की नाफरमानी के लिए कहें तो नहीं मानी जाएगी। समझिए आप, जब नमाज का सीखना फर्ज ऐन है और वो जानता नहीं है, कुरान का सीखना फर्ज ऐन है, उसने नहीं पढ़ा है और बात मना करे, तो ऐसी सूरत में ये खिलाफ शरअ उसकी माना उसकी गुफ्तगू है, ये उसकी बातें हरगिज़ शरअ मानने के काबिल नहीं है, नहीं मानी जाए। सिर वगैरह मांग भरना ये गैरों की निशानी है, इसलिए इस्लामी माँ बहनों को इससे इज्तनाब और एतराज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मियाँ बीवी थे, कुछ झगड़ा हो गया, बीवी मायके चली गई, बैठक हुई, पंच बैठे। ये आजकल के पंचों को शरान फैसला करना जायज नहीं है। कोई मसला हो गया, झगड़ा हो गया और महल के जिम्मेदार और बस्ती के जिम्मेदार आजकल जिम्मेदार नहीं इकट्ठा किए जाते हैं, बल्कि बस्ती के फसादी इकट्ठा किए जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? गलत नहीं सही है?
جواب ہو جائے. اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں. ایک کو فیصلہ کرنا ناجائز و حرام ہے. فیصلہ اس کو کرنے کا ہے جو نبی کی شریعت کو جانتا ہو کہ رسول اللہ کی شریعت کیا جائز کہتی ہے, کیا ناجائز, کیا حلال, کیا حرام. اب وہ 5 اکٹھا ہو گئے 5 اور فیصلہ کر دیا تم کو ایسا کرنا پڑے گا, تم کو ایسا کرنا پڑے گا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں اللہ کی نبی کی شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے. یہ فیصلہ کی قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے. یار وہ لوگ جو رسول اللہ کی شریعت کے مسائل سے, حلال و حرام کے احکام سے واقف نہ ہو, ان کو کوئی فیصلہ کرنا ناجائز و حرام ہے اور ان سے فیصلہ کروانا یہ بھی ناجائز و حرام. اب شوہر نے کہا ہماری بیوی سے بات کروا دیجیے, نہیں بچوں نے کہا نہیں صاحب بات نہیں کروائیں گے تو کو طلاق دلوانا پڑے گا, دینا پڑے گی. اور صاحب زبردست دلوا دی طلاق اور بسا ہوا گھر کو اجڑا دیا. ارے بھائی بندوں کا کام تو یہ تھا جہاں تک ہو سکتا تھا ملانے کی کوشش کرتے, اور جب ملنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تب بھائی طلاق دے دو, کوئی نہیں تو کو طلاق دینا پڑے گی. یہ بہرحال میں مسئلہ بتا دے رہا ہوں. ایسے بند جو احکام شرع نہ جانتے ہو ان سے فیصلہ کروانا ہرگز جائز نہیں ہے. آپ اس کا خیال رکھیں. طلاق ہو جائے, جب شوہر طلاق دے گا تو طلاق واپس ہو جائے. اب ایک سوال ہے کہ حج و عمرہ کے درمیان مسجد عائشہ میں غسل اور وضو کرنا ضروری, ایسا کچھ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ یہ عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. آپ نے کوارٹر میں جہاں ٹھہرے ہیں وہیں آپ وضو بنا لیجیے, چاہے غسل کر لیجیے اور احرام کی چادریں پہن لیجیے اور مسجد عائشہ جا کر آپ 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھیے, وہ بنیتے ہیں 2 رکعت نماز بنیتے احرام پڑھیے, اس کے یہ نماز سر ڈھاک کے پڑھیے اور سلام پھیرنے کے بعد سر دھو دیجیے. اس کے بعد عمرے کی نیت کیجیے, 3 بار لبیک پڑھ لیجیے, دوسری پڑھ لیجیے, آپ کا احرام بن گیا. وہاں وضو غسل کرنا ضروری ہو ایسا کوئی حکم شرع نہیں. اب چھوڑتے گئے اور اس وقت میں کچھ مردے کی ہڈیاں نکل آئیں تو ان ہڈیوں کو ایک کونے میں رکھ دیا جائے اور اس میں میت کو دفن کیا جا سکتا ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے. سرکار نے فرمایا مسجد میں دنیاوی باتیں یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ بکری کھا جاتی ہے. آگے کیا بول رہے جو آج کے لیے رواج بن گیا ہے مزاروں کا غسل ہوتا ہے تو وہ غسل کا پانی کہتے ہیں یہ پینا چاہیے, یہ پینا چاہیے نہیں. اللہ کے ولیوں کے جو مزارات ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں, بڑے قابل برکت ہیں. یار اللہ کے ولی کے مزار شریف کا وہ سارا شریف اگر کسی نے پو دیا اس میں کوئی حد نہیں ہے. یہ بڑی برکت وہ چیز ہے, اس سے فائدے بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ سنت ہوگی انشاءاللہ سے فائدہ بھی پہنچے. دیکھ میرے بھائی بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام میری گزارش یہ ہے آپ وہ سوالات کریں جس سے ساری قوم کو فائدہ پہنچے, ہے نا. بڑے پیر صاحب کی درگاہ ہمارے پرچے پر پرچے یعنی 3 پرچے آ چکے ہیں. دیکھیے وہاں بڑے پیر صاحب کا کوئی مزار شریف نہیں ہے, سمجھ گیا. تو مزار کی نیت سے جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, سمجھ گیا. لیکن یہ میری گزارش ہے کہ پھر تو فساد سے اپنی ماحول کو بچائیے. ہاں اگر کوئی جگہ سرکار بھی نواز یا بڑے پیر صاحب کی